Welcome, my dear students. Welcome to another session on indices and surds. First question of this session. If x minus 3 into x minus 5 into x minus 7 into x minus 9 plus 4a is a perfect square, then what will be value of a? This is a very interesting question and based on a property. जिसको समझते हैं पहले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. Let us say we've been given 4 consecutive numbers, 1, 2, 3, 4. Okay, these are 4 consecutive numbers. Basically these are 4 numbers in an arithmetic progression जिसका कि common difference कितना है, 1 है. If you multiply all these 4 numbers, 1, 2, 3, 4, तो result will be 24. And if we add 1 into this, 24 plus 1 becomes 25, which is 5 whole squared, which is a perfect square. ठीक है, basically 1 into 2 into 3 into 4 plus 1, that is a perfect square, that is 25, which is 5 square. Now let us multiply 2, 3, 4, 5. These are also 4 consecutive numbers in an arithmetic progression, and if we add 1, this is 120, so this result becomes 121, which is 11 whole squared. So ये केस भी हमारा perfect square आया. This is also a perfect square. एक और पैटर्न देखते हैं, 3, 4, 5, 6 plus 1. This is 3 into 4, 12 into 30, 420 plus 1. एक सेकेंड, 6 into 5, 30, 30 into 12, 360 plus 1, 361. So that is 19 whole square. Again, this is also a perfect square. तो एक पैटर्न समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है. एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 1, 3, 5 and 7. These are not 4 consecutive numbers, but these are 4 numbers in an arithmetic progression. ठीक है, और यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है. कॉमन डिफरेंस इज 2. प्रोडक्ट कितना आएगा, 7 to 5, 35 into 3, 105 is the product. And if we add 16 into it, so this becomes 121, which is 11 whole squared. और 16 क्यों ऐड किया, this 16 is 2 to the power 4. अभी तक 1 ऐड कर रहे थे बिकॉज हमारा कॉमन डिफरेंस 1 था. इन जनरल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, सो इफ देयर आर 4 numbers a, b, c and d, these are the 4 numbers and a, b, c, d are in an arithmetic progression. These are in an AP and common difference of the AP is small d. Small d is common difference. In such a case, the product of all these 4 numbers a, b, c, d, product of all these 4 numbers a, b, c, d plus common difference to the power 4, this is a perfect square. This whole number is a perfect square. Is that clear? This is a perfect square. And this is perfect square of product of a and d, यानी first term and the last term of the AP plus d square, small d square का whole square. So this is the important property that we have to understand. इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, और एग्जाम्पल तो ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं. ठीक है, इसका प्रूफ भी फटाफट से देख लेते हैं. प्रूफ के लिए, क्योंकि 4 नंबर्स हैं हमारे, तो लेट अस अज्यूम दीज नंबर्स आर a minus 3d, a minus d, बिकॉज द प्रोडक्ट हमारा थोड़ा सा कन्वीनियंट होगा, दैट इज वाई a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d, these are the 4 numbers. और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस इज प्लस 2d. 2d is the common difference. If you multiply all these 4 numbers, this becomes a minus 3d into a minus d into a plus d into a plus 3d. So this becomes a minus 3d into a plus 3d, that is a square minus 9d square, 3d का whole square, a square minus 9d square. Similarly, a minus d into a plus b, d will be a square minus d square. अब मल्टीप्लाई कर दो इनको, so a square into a square will be a to the power 4 minus a square d square minus 9a square d square and plus 9 times d to the power 4. So this is a to the power 4 minus 10a square d square plus 9 d to the power 4. Okay, now since the common difference was 2d, if we add 2d to the whole power 4 in this value, अगर हम इसमें 2d to the power whole power 4 को ऐड कर दें तो क्या रिजल्ट बनेगा हमारा, तो a to the power 4 minus 10a square d square प्लस 9 डी टू द पावर 4 तो ऑलरेडी था, हमने ऐड किया इसमें,
we added 2d to the whole power 4 because 2d is the common difference in our AP. So अब result हो जाएगा a to the power 4 minus 10a square d square plus this is 9d to the power 4 और ये हो जाएगा 16 times d to the power 4. तो 9 plus 16 25 times d to the power 4. So this is a square whole squared minus 2 into a square into 5d square plus 5d square whole squared, and hence this is equal to a square minus 5d square to the whole square. So this becomes a perfect square. Clear है? Okay. और साथ में रिजल्ट में हमने क्या कहा था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट प्लस कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर. सो दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर होल स्क्वायर बिकॉज दिस इज 5d स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर हो जाएगा हमारा ए माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d प्लस 2d होल स्क्वायर. तो सेम रिजल्ट हमारा आ गया. इज दैट क्लियर? ठीक है. अब क्वेश्चन का प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया होगा और क्यों ऐसा होता है ये भी क्लियर हो गया होगा. एग्जाम्पल भी हमने देख लिया. नाउ गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन इज x minus 3 into x minus 5 into x minus 7 into x minus 9 plus 4a that is a perfect square and all these four numbers x minus 3 x minus 5 x minus 7 x minus 9 ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, एक एपी फॉर्म कर रहे हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ कि x की वैल्यू क्या होगा. x का वैल्यू कुछ भी हो ये सारे के सारे नंबर्स तो एपी में होंगे और एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है x minus 3 minus 2 is x minus 5 यानी कॉमन डिफरेंस d is equal to minus 2. numbers are in AP and d is equal to minus 2. तो product of all these four numbers plus common difference to the whole power 4 यानी minus 2 to the power 4, this will be a perfect square. This will be a perfect square. So this value should be minus 2 to the power 4 which is equal to 16. And in the question this is given as 4a. So 16 should be equal to 4a and hence a will be equal to 4. Is this clear? This will be the answer. Okay. क्या ये बात क्लियर है? हालांकि इस लैंग्वेज में एक्चुअली मल्टीपल आंसर्स बन जाएंगे इस क्वेश्चन के, बिकॉज इसमें कुछ और ऐड कर दोगे तो और परफेक्ट स्क्वायर तब भी बन जाएगा. द बेटर लैंग्वेज शुड हैव बीन कि 16 तो आया ही है. दिस 16 इज इक्वल टू, यहां पे लिख देते हैं y टू द पावर 4 और y की वैल्यू क्या होगी. सो 16 इज इक्वल टू y टू द पावर 4 एंड हेंस y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2. y will be equal to plus minus 2. Is that clear? Okay. क्या ये बात समझ में आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. रूट ऑफ 24 इंटू 25 इंटू 26 इंटू 27 प्लस 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? What will be square root of this value? So now we know that this value will be a perfect square because 24, 25, 26, 27 ये सारे के सारे हमारे consecutive numbers हैं, तो AP फॉर्म कर रहे हैं और उस AP का प्रोडक्ट हमने लिया 4 consecutive टर्म्स का और उसमें 1 ऐड किया है बिकॉज कॉमन डिफरेंस 1 है, तो कॉमन डिफरेंस टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू 1. ठीक है. सो डेफिनेटली दिस होल प्रोडक्ट विल बी स्क्वायर ऑफ 24 इंटू 27 प्लस कॉमन डिफरेंस स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा और उसका हमने स्क्वायर रूट लिया है. So the result will be 24 into 27 plus 1. This value will be 24 into 27. So 540 plus 108, 648 plus 1, 649. So this will be the value of the result. क्या ये part clear है? Okay. 649 will be the answer. Okay. Next question. Square root of 256 plus 2 times square root of 508 minus square root of 256 minus 2 times square root of 508, क्या रिजल्ट आएगा हमारा इस केस में? तो अगेन कंपेयर करते हैं. स्क्वायर रूट निकालना हम सीख ही चुके हैं. सो दिस विल बी a प्लस बी प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर रूट माइनस a प्लस बी minus 2 times square root of ab. So this result will come out to be square root of a plus square root of b, and this result will come out to be square root of a minus square root of b, and hence this will be equal to 2 times square root of b.
तो डिपेंड करेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए कौन सा होगा, जो लार्जर वैल्यू होगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी कौन सा होगा, जो स्मॉलर वैल्यू होगा, बिकॉज अल्टीमेटली स्क्वायर रूट्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ बी। दोनों की वैल्यूज हमें निकालना पड़ेगा, बट कॉन्सेप्ट तो यही है, ठीक है। सो अब वैल्यूज हमारे क्या आएगा, ए इंटू बी क्या आ रहा है 508 और ए प्लस बी क्या आ रहा है 256 और 508 हमारा आ रहा है दैट इज 254 इंटू 2। सो यही दोनों वैल्यूज होंगी हमारी। स्क्वायर रूट ऑफ ए विल बी 254, ए विल बी 254, स्क्वायर रूट ऑफ ए तो स्क्वायर रूट ऑफ 254 होगा और स्क्वायर रूट ऑफ बी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो एज अ रिजल्ट हमारा रिजल्ट आएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ बी यानी 2√2। फर्स्ट वैल्यू हमारी होगी रूट ऑफ 254 प्लस रूट ऑफ 2, सेकंड होगा रूट 254 माइनस रूट 2। ओके, 2√2 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स और एक्सप्रेशन है हमारा, इक्वेशन है हमारी 3 टू पावर 2x प्लस 2 इंटू 3 टू पावर x माइनस 99 एंड दैट इज इक्वल टू 0। दैट होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। 3 टू पावर 2x प्लस 2 इंटू 3 टू पावर x माइनस 99 इज इक्वल टू 0। और 3 टू पावर 2x को हम लिख सकते हैं 3 टू पावर x होल स्क्वायर्ड प्लस 2 टाइम्स 3 टू पावर x माइनस 99 इज इक्वल टू 0। नाउ लेट अस अज्यूम कि 3 टू पावर x हमारा इक्वल टू y है, दिस इज इक्वल टू y। सो एक्सप्रेशन बिकम्स, इक्वेशन बिकम्स y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 99 इज इक्वल टू 0। 99 को दो पार्ट से ब्रेक करो जिनका डिफरेंस हो 2, तो दोनों पार्ट्स हमारे हो जाएंगे 11 और 9, 11 और 9, तो y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 9y माइनस 99 इज इक्वल टू 0। तो y इंटू वाई प्लस 11 माइनस 9 इंटू वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन इज y माइनस 9 इंटू वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब अगर दो वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कोई एक वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी। सो ईदर y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू माइनस 11। बट द प्रॉब्लम इज कि y इज हमारा 3 का पावर x, 3 टू पावर x है, तो 3 टू पावर x तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा कोई भी वैल्यू x की, तो डेफिनेटली y इज इक्वल टू माइनस 11 कैन नॉट बी द सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू 9 है यानी कि 3 टू पावर x इज इक्वल टू 9 एंड हेंस x विल बी इक्वल टू 2। आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is equal to 7 plus 2 root 12 then what is the value of square root of x minus 1 upon square root of x। यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है x का और फिर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x यानी कि उसका रेसिप्रोकल भी फाइंड आउट करना है और दोनों का फिर डिफरेंस लेंगे। सो x हमारा आ रहा है 7 प्लस 2 रूट 12, सो वी कैन राइट दिस एज x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 3। सो दिस विल बी रूट ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर्ड एंड रूट ऑफ 4 क्या है, रूट ऑफ 4 इज 2, तो 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर्ड दैट इज x। और अगर x का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर्ड है तो रूट ऑफ x आ जाएगा हमारा 2 प्लस रूट 3। 2 प्लस रूट 3 कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, 2 प्लस रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस रूट 3 एंड इफ यू मल्टीप्लाई दीस टू वैल्यूज 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 तो प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा, डिफरेंस कितना, 2 स्क्वायर इज 4, रूट 3 स्क्वायर इज 3, 4 और 3 का डिफरेंस इज 1, तो प्रोडक्ट हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1। तो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 दैट इज इक्वल टू 1। 2 प्लस रूट 3 इज रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 और वी कैन से दैट 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। क्या ये बात क्लियर है? ओके, खत्म सवाल। रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स विल बी इक्वल टू रूट एक्स है 2 प्लस रूट 3 और 1 अपॉन रूट एक्स है 2 माइनस रूट 3, तो माइनस 2 माइनस रूट 3, so result will be 2 root 3. This will be the answer. Clear? Okay. Next question. If y is equal to 9 minus root 77 by 2, then find y square plus 1 upon y square. Pause the video. Try to solve. थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चन में, शायद समझने में टाइम लगेगा। अगर राइट डायरेक्शन नहीं जाओगे तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, तो सॉल्व करो, ट्राई करो, ठीक है। y हमारा गिवन है 9 माइनस रूट 77 डिवाइडेड बाई 2 और हमें y स्क्वायर करना है और 1 अपॉन वाई स्क्वायर करना है, तो y स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे और फिर 1 अपॉन वाई स्क्वायर यानी कि उसका रेसिप्रोकल का वैल्यू करेंगे। ओके, y गिवन है हमारा 9 माइनस रूट 77 डिवाइडेड बाई 2, फाइन। तो इंस्टेड ऑफ वाई स्क्वायर डायरेक्टली करने के, क्योंकि फिर वहाँ पे कैलकुलेशन हमारा बहुत बढ़ जाएगा, 9 स्क्वायर करेंगे, रूट 77 स्क्वायर करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तामझाम करेंगे बहुत सारा,
और फिर 1/y² भी करना पड़ेगा। बेटर होगा इफ यू कैन ऑब्जर्व दैट 9 क्या है हमारा, 9 को भी सर्ड में कन्वर्ट करो या फिर रूट में कन्वर्ट करो, सर्ड तो नहीं रूट में कन्वर्ट करो, तो 9 हो जाएगा हमारा रूट ऑफ 81, रूट 81 माइनस रूट 77 डिवाइडेड बाई 2। स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यूज में डिफरेंस कितना है, 81 और 77 में डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो कॉन्जुगेट होगा रूट ऑफ 81 प्लस रूट 77, रूट ऑफ 81 माइनस रूट ऑफ 77 into root of 81 plus root of 77, this is equal to 4, this is equal to 4, okay, clear, ये तो वैल्यू 4 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इफ y इज दिस, या तो फिर यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते कॉन्जुगेट से, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे रूट ऑफ 81 प्लस रूट 77 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 81 प्लस रूट 77, सो न्यूमरेटर विल बी इक्वल टू 4, तो 4 अपॉन 2 into root of 81 plus root 77. So that will be 2 upon square root of 81 plus square root of 77. Isn't it so? क्या है बात क्लियर है? क्योंकि ये दोनों बातें एक ही है, ठीक है, ओके। इज दिस पार्ट क्लियर? कोई दिक्कत? तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर विल बी रूट ऑफ 81 माइनस रूट ऑफ 77 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, और 1 बाई वाई स्क्वायर क्या होगा भाई, वाई ये वैल्यू भी तो है, सो 1 बाई वाई स्क्वायर, 1 बाई वाई हो जाएगा रूट ऑफ 81 प्लस रूट 77 बाई 2, तो 1 बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा रूट ऑफ 81 प्लस रूट ऑफ 77 बाई 2 होल स्क्वायर, इजंट इट सो? ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, सो वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई 4 तो है ही है डिनोमिनेटर में, एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो आता है रिजल्ट। तो बस स्ट्रेट अवे हम क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स ए स्क्वायर यानी रूट 81 का होल स्क्वायर प्लस रूट 77 का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी 2 टाइम्स 81 plus 77 divided by 4. So 81 plus 77 divided by 2 which is 158 by 2, आंसर आ जाएगा 79. This will be the answer 79. क्या ये क्लियर है? क्या एक अप्रोच समझ में आ रहा है? ठीक है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम रॉ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बिकॉज फिर कैलकुलेशन करते ही रह जाएंगे, क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं होगा। क्वेश्चन को हमेशा हमें कॉन्जुगेट से कनेक्ट करके सिंप्लीफाई करना है अपने लिए। पीछे वाले क्वेश्चन को भी हमने ऐसे ही किया था, तो इन सब चीज़ों को अगर सीख जाओगे, कनेक्ट कर पाओगे, तो फिर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को हमें छोड़ना पड़ेगा फिर, बिकॉज रॉ कैलकुलेशन हो तो क्वेश्चन हमारा बहुत टिपिकल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए क्यूब टू द पावर बी टू द पावर क्यूब टू द पावर 3 a cube to the power b to the whole power 3 that is equal to 2 cube into 32 cube, so which of the following could be possible values of a and b if a and b are positive integers? अगर a और b हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो क्या वैल्यूज हो सकती हैं, ये हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। फाइन, तो गिवन है a क्यूब टू द पावर b टू द पावर 3, तो सारी पावर्स हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी a टू द पावर 9b एंड दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 32 होल क्यूब। 32 इज 2 टू द पावर 5, तो कन्वर्ट कर दो इसको, 2 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 5 होल क्यूब, so this will be 2 to the power 3 into 2 to the power 15, so 2 to the power 18 हो गया, which is equal to a to the power 9b. okay, a and b both are positive integers, so directly हमें इक्वेशन मिल गया है a to the power 9b is equal to 2 to the power 18, so 9b can be equal to 18। अगर हमारा a is equal to 2 है, if a is equal to 2 then 9b will be equal to 18, which implies that b will be equal to 2। तो एक सॉल्यूशन तो हो सकता है a is equal to 2 and b is equal to 2, isn't it so? और वी कैन राइट 2 to power 18 को ब्रेक कर सकते हैं 2 to power 2 into 9 में, एंड देन वी कैन से दैट दिस इज 2 स्क्वायर टू द होल पावर 9, यानी कि 4 to the power 9 हो गया। इन सच ए केस a विल बी इक्वल टू 4 एंड इन दैट केस b विल बी इक्वल टू 1, बिकॉज 9b इज 9, सो b विल बी इक्वल टू 1। सो दीज आर द 2 पॉसिबल सिनेरियोस, और तो कोई वैल्यू हो नहीं सकता, a 1 हो नहीं सकता, a को और ज्यादा बड़ा वैल्यू लोगे तो b हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो सिंस a एंड b बोथ आर इंटीजर्स, सो ये हमारे 2 पॉसिबल केसेस बनेंगे, इनमें से एक केस ऑलरेडी ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। बट अदरवाइज हमारे पास टोटल 2 पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन आ रहे हैं ए और बी के लिए, 2,2 एंड 4,1। देयर आर 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस, इज दैट क्लियर?
इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पे या तो ए फ्रैक्शन में होगा या फिर बी फ्रैक्शन में होगा, या फिर वैल्यूज नेगेटिव में भी हो सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए को ले लें और टिपिकल वैल्यू लें, लेट अस से हमने कह दिया कि ए इज इक्वल टू 8 मान लेते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू 8 मान लेते हैं। सो इफ ए इज इक्वल टू 8 हो गया तो 2 टू द पावर 18 है, यानी कि दिस विल बी 2 टू द पावर 3 इंटू 6, यानी कि 8 टू द पावर 6 हो गया। सो इफ ए इज इक्वल टू 8, बेस सेम होगा, बेस को कंपेयर किया, ए इज इक्वल टू 8 हो गया तो 9b इज इक्वल टू 6 एंड हेंस b विल बी इक्वल टू 6/9 यानी कि 2/3। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे तो इनफाइनटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे हमारे, बट क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि तरीके ये सब हमें समझ में आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही सॉल्यूशन हो, कोई और कंडीशन भी गिवन हो सकता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a to the power x is equal to root b, b to the power y is equal to c to the power 1/3 and c to the power z is equal to root a, then we have to find the value of x, y, z. x, y, z का प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा? a to the power x is equal to root b, b to the power y is equal to c to the power 1/3 and c to the power z that is equal to a to the power half root a. तो अगर a to the power x हमारा है b का स्क्वायर रूट यानी कि b to the power half है, सो वी कैन से दैट b विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये देख सकते हो पहला वाला जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, a और b को कनेक्ट कर रहा है, दूसरा कनेक्ट कर रहा है बी और सी को, और फिर तीसरा वापस से कनेक्ट कर रहा है सी को ए से, यानी कि एक साइक्लिक टाइप का मामला है। पहले ए को बी को से कनेक्ट कर रहे हैं, फिर बी को सी से, फिर सी को फाइनली ए से ही कनेक्ट कर रहे हैं, तो पूरा साइक्लिसिटी है। तो हम क्या करेंगे, ए वाला एक्सप्रेशन से बी पे कन्वर्ट करते हैं, बी से सी पे जाते हैं और फिर फाइनली हमारा वापस से हम ए पे पहुंच जाएंगे। और जो हमें वैल्यू पूछा गया है एक्स इंटू वाई इंटू जेड, बिकॉज ए की पावर है एक्स, बी की पावर यहाँ पे वाई है और सी की पावर है जेड, तो डेफिनेटली हम इसका वैल्यू भी निकाल पाएंगे। ओके, अप्रोच यही रहेगा तो निकाल पाओगे, अदरवाइज तुम हौच पौच करोगे। इसलिए ही मैं बता रहा हूं कि अगर साइक्लिसिटी में दी है चीजें या नहीं भी दिया है, हो सकता है दूसरा वाला इक्वेशन थर्ड प्लेस पे दिया होता है, बट तब भी बात वही होती है, पहले तुम सेकंड वाले को डील करते फिर। ठीक है, सो ए टू द पावर एक्स हमारा है बी टू द पावर हाफ, यानी कि यहां से हम क्लियरली अगर दोनों का स्क्वायर कर दें तो बी टू द पावर 1 विल बी इक्वल टू ए टू द पावर 2x, यानी कि बी इज इक्वल टू ए टू द पावर 2x। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड है बी टू द पावर y इज इक्वल टू सी टू द पावर 1/3, होल क्यूब कर दो दोनों साइड में, तो सी टू द पावर 1 विल बी इक्वल टू बी टू द पावर 3y। दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। ओके, और फिर c टू द पावर z है हमारा इक्वल टू a टू द पावर 1/2, यानी कि a टू द पावर 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू c टू द पावर 2z। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन को दूसरे में पुट करते हैं, दूसरे को पुट करेंगे तीसरे में, हमारा रिजल्ट आ जाएगा क्वेश्चन का। तो b इज इक्वल टू a टू द पावर 2x प्लेस करते हैं सेकंड वाले पे, तो c विल बी इक्वल टू, b क्या है a टू द पावर 2x, तो a टू द पावर 2x टू द पावर 3y एंड हेंस दिस विल बी इक्वल टू a टू द पावर 6xy। अब इस एक्सप्रेशन को पुट करो थर्ड वाले में, और a विल बी इक्वल टू c टू द पावर 2z, और c टू द पावर 2z है, c क्या है a टू द पावर 6xy है, तो a टू द पावर 6xy टू द होल पावर 2z, यानी कि दिस बिकम्स a टू द पावर 12 टाइम्स xyz। और a की पावर कितना है 1 है, सो 1 शुड बी इक्वल टू, बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होना चाहिए, तो 1 शुड बी इक्वल टू 12 टाइम्स xyz, तो 1 विल बी इक्वल टू 12 टाइम्स xyz and hence xyz will be equal to 1/12. Clear? xyz will be equal to 1/12. कोई दिक्कत? ठीक है, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सो आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। इतना ही रखते हैं इस सेशन में, एंड आई बिलीव सेशन में जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में डूइंग सम मोर क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस और इनफाइनाइट सीरीज जो होता है स्क्वायर रूट वाला और मल्टीपल टाइप्स का, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।